Assalamu alaikum, guys. This is me, Ali Baqir Khan, with another session of Youth Alumni Association. Today we have Aiza Riaz again with us. Thank you so much, Aiza, for joining again. How are you doing today? Thank you. Thank you for having me, Ali. Alhamdulillah, I'm perfectly fine. All right, that's good to know. We guys were having a discussion regarding, coming up with a certain topic, and we had different topics in our mind. But this topic would, I'm going to give Aiza the credit because she's the one who chose this specifically for women, not just in Pakistan, but globally, if they're listening to us. The topic basically is like how important for it, how important it is for young girls and women to actually go ahead, and play their part in earning as well. I mean, apart from, their household things that they do as a housewife and all, even if you're not married and if you're a single girl, it does not mean that you don't have any right to go out there and earn. You can go ahead and do that. So Aiza, I think I would like you to go ahead and start off and elaborate, since you've done some research on this aspect and being a woman yourself. You're earning as well. What do you think is going on, and can you please go ahead and elaborate more about on this topic? Thank you so much, Ali. Thank you for giving me the chance to speak about it. And as I have discussed earlier, that this topic is very close to my heart, because it is really painful to see all those girls and all that talent and potential being wasted for nothing. And then there are a lot of aspects on which I'm going to talk about. But first, just start off with what Islam says about women empowerment, what is women empowerment, and what is feminism, to be particular. और ज़ाहिरी बात है, मैं इस पे पूरा lecture या पूरी debate तो नहीं कर सकती, although I can, लेकिन मैं नहीं कर सकती क्योंकि time constraint है. तो basically बात ये है कि औरत को अल्लाह ताला ने जो है वो नज़ाकत और हुस्न दिया, जबकि मर्द के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू अर्न एंड टू प्रोवाइड. ही इज द प्रोवाइडर एंड द प्रोटेक्टर. ठीक है. और औरत जो है वो उसके क्रिएशन का मकसद था कि वो रिलीफ पैदा कर सके दुनिया के अंदर, खूबसूरती पैदा कर सके और लिबास बन सके अपने शौहर का और अपने घर वालों के लिए सुकून की एक जगह. इस्लामिक पर्सपेक्टिव ये था. इस्लामिक पर्सपेक्टिव. लेकिन इसमें कहीं पे भी ऐसे नहीं कहा कि women are somewhat lower than men in status or in any kind of potential. लेकिन जो है हाकिम या फिर जो प्रोटेक्टर है वो मर्द को बनाया गया. Now I want to emphasize one thing कि हमारी as a society we have to coexist and we have certain responsibilities that we share with one another to share the burden. अगर हम as a male and a female अपनी responsibilities को divide नहीं करेंगे और फिर अपना अपना role नहीं play करेंगे तो ये मुआशरा चल नहीं सकेगा. तो सिर्फ जो साफ साफ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है वो मेल की है कि he has to earn and provide, और जो फीमेल की है वो ये कि she is the home maker, घर बनाना उसके. और असल में भी तरबियत हो गई बच्चों की, घर के वो काम शाम हो गई, ये सारा कुछ ये एक औरत का जिम्मा है. It is very good that women nowadays take responsibility of what they do, लेकिन उसके साथ साथ it is very important कि वो professionally और education के लिहाज से भी pursue करें. जैसे कहीं पे भी ये नहीं लिखा कि मर्द जो है घर का काम करेगा तो वो औरत बन जाएगा. He has to like help her. I mean, I can cook. Let me give my example. I don't mind doing it in my free time. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam used to cook. Used to even he cleaned the house with his wives. यानी वो झाड़ू तक लगा लेते थे. तो who are we to be ashamed of anything that we cannot do something or define something to a specific gender? तो बात ये है कि you know that the economy is failing and we are also failing ethically. हम ethically और morally भी decline की तरफ है हमारी society, हम economically भी decline की तरफ है. दोनों सूरतों में अपने आप को इस काबिल बनाना कि आप जो हर किस्म के हालात का सामना कर सको, it is really important for everyone. You never know what happens because आजकल तो आपकी salaries इतनी नहीं होती लोगों की कि वो बिजली का बिल भी afford कर सके properly. So I understand what you're coming, सबसे बड़ा virtue जो आप अपने अंदर develop कर सकते हो, the greatest virtue you can have in your personality is एहसास, is care.
कि आप एहसास रखो कि दूसरा बंदा भी इंसान है, और चाहे वो मेल है चाहे फीमेल, दोनों एक दूसरे का एहसास करें कि उसकी सर्टेन पोटेंशियल और सर्टेन लिमिट्स हैं which he cannot they cannot go beyond, or you have to cope with it and support it. अच्छा, तो गेटिंग ऑन टू द मेन टॉपिक, पहले तो मैं आपके ये दिमाग से ये निकालना चाहती थी ना कि जो एक फॉल्स किस्म की फेमिनिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हो गई है कि अपना खाना खुद गर्म करो और अपने हाँ, I कपड़े was खुद coming towards that point and I wanted to ask that question as well कि देखें, एक women card का नाम यूज होने लग गया अब कि जी women are trying to play their cards, which is not wrong completely as well, because there are certain women who are trying to actually develop those habits जहाँ पे they are trying to take the advantage of women empowerment. So how to create, my question to you would be, I mean, of course you're going to go ahead and elaborate on this topic. Okay, first of all, how to create a certain balance between if a girl is going out and if she starts earning. Now there are, this time मैंने last time भी हम बात कर रहे थे तो एग्जांपल दी थी कि हजरत खदीजा ने अपना जो मैसेज था वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद कन्वे किया था, एंड शी वाज 45 और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आई गेस 30s या 20s में थे, आई एम नॉट श्योर अबाउट द एज, बट 20। हाँ 20s, काफी छोटे थे। तो इस्लाम ने इतनी बड़ी एग्जांपल दी है, पहले तो कोई एज की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, जो हमारे में होता है कि जी लड़की बड़ी है तो शायद वो लड़का छोटा है, तो इतनी बड़ी जब आपको इस्लाम एग्जांपल दे रहा है तो फिर कौन कोई होता है कोई इस तरह की बात करने वाला। आई एग्री विद दैट फैक्ट। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द पॉइंट जहां पे you're going to meet a lot of parents, you're going to meet a lot of other people who are concerned about their daughters कि नहीं जी, एक तो कंसर्न आ जाता है, फिर कुछ लोग स्पेशली जो कुछ ऐसी फैमिलीज हैं जहां पे लड़के जो हैं स्पेशली अगर उनमें बात हो रही हो कि यार आपकी वाइफ जो है अच्छा वो शी वर्क्स इज वेल, नहीं क्या हालात शलात ठीक है आपके, मतलब इस तरह लोग बात करके अगलों को फील करवाने की कोशिश करते हैं, कमिंग फ्रॉम दैट बैकग्राउंड ऑब्वियसली लड़कों में उठता है बैठना ऑल दैट, सो आई एम कमिंग टुवर्ड्स, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि छोटी छोटी चीजें होती हैं while conversation के जी हम तो कभी अपनी बीवियों को काम पे ना भेजें। I'll be very honest about it, लोग इस तरह से कहते हैं कि जी we never want कि वो जाएं and all that, so आपकी वो बात बड़ी अच्छी थी कि ethical values तो देखें, कहीं ना कहीं तो उन्होंने कल को जाना ही है ना, जब आपकी शादी होती है तो आप लोग और भी 10 जगहों पे जाते हैं, खाना खाने जाते हैं तो वेटर को ऑर्डर भी तो देती है ना, तो कहने का मकसद है ये तो बिल्कुल ही आप निकाल दें कि उनको कहीं मेल इंटरेक्शन नहीं होगी। हाँ, जो गलत कॉन्सेप्ट है वो ये सोशल मीडिया का जो इन्फ्लुएंस है वो जिस तरफ यंग जनरेशन को लेके जा रहा है, आई थिंक दैट्स वन ऑफ दोज थिंग्स जिसको हमें कंट्रोल करना चाहिए। दिस इज माय पर्सपेक्टिव। नाउ यू कैन गो अहेड एंड शेयर द फीमेल पर्सपेक्टिव कि व्हाट डू यू गाइस फेस, और क्या ऐसे इश्यूज आपने देखे हैं जो लड़कियों को फेस करने पड़ते हैं जिसकी वजह से दे आर नॉट एबल टू ग्रो एंड हैव दैट माइंडसेट कि हम भी निकलें और हम भी अर्न करें। अली, ये बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कशन है, और ना मैं कोई रिलीजियस स्कॉलर हूँ, ना मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, ना एग्जैक्टली सोशोलॉजिस्ट। जी। मैं एक वन ऑन वन एक्सपीरियंस है सिर्फ, और उसकी बेस पे बात कर रही हूँ लोगों के साथ। पहले बात तो इसमें जहाँ तक आ गया सवाल के गर्ल एजुकेशन, एजुकेशन और वर्क लाइफ, ये अव्वल तो हमारे पाकिस्तान में हो सकता है ऐसे इलाकों में अभी भी होता हो कि बेटियों को तालीम नहीं दिलवाते, लेकिन इसकी चीज़ की रेशो बहुत कम हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। अब स्पेशली मेरे सर्कल में मैंने आज तक कभी कोई एक लड़की नहीं देखी जिसके पेरेंट्स ना चाहते हो कि वो पढ़ें। लोगों में इस चीज़ की बहुत अवेयरनेस आ गई है कि हमने बेटियों को एजुकेट करना है। जी। लेकिन ये जो नेक्स्ट स्टेप है ना एजुकेशन के बाद करियर डिफाइन करना, वो अभी अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन आई वाज परस्यूइंग फॉर मेडिकल एजुकेशन, तो माय फादर वाज लाइक कि हाँ ठीक है पढ़ लो लेकिन जॉब ना करना, यानी डॉक्टर बन जाओ लेकिन जॉब ना करना। क्या लेकिन फायदा फिर डॉक्टर बनने का जब मैं अपनी स्किल को ये तो वही बात है, गाड़ी खरीद लें बेटा लेकिन चलानी नहीं है, बैठना नहीं है आपने गाड़ी। अली, ये ना दो तरफ का मामला है। हमारे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं और वो बेतहाशा मोहब्बत करते हैं अपनी सबसे कीमती चीज से, जो कि एक बेटी है। बेशक और उनकी ये चीजें मुझे अब आके समझ आई व्हेन आई स्टार्टेड माय ओन बिजनेस फॉन एक्सप्रेस। और उसमें मुझे बल्कि कहीं जाना नहीं होता था, बल्कि मेरे बाबा कहते थे कि आई कैन यू कैन कम टू माय शॉप एंड मेक अ ऑफिस ऑफ योर ओन। ऊपर वाले फ्लोर पे ऑफिस बना लो मेरी शॉप के, हाल रोड पे हमारी मोबाइल्स की शॉप है, तो इट वाज एन ऑनलाइन सेटअप, तो मैं घर से ही करती थी। लेकिन उसमें मुझे जिस तरह मैंने पाकिस्तान की आवाम से इंटरेक्ट किया, वो इतने लो लेवल है, इतने लो लेवल है कि
कोई भी लड़की, I don't think so they feel safe or they feel good about working in an environment. I've been a president of a prominent society at Government College University, and although it is the most respectable university that I have ever been to, मैं Beacon House से पढ़ी हूँ, LGS में गई हूँ, इतनी ज़्यादा जगहों पे गई हूँ, but GC is the most respected institution No doubt. according to me. No doubt. और उसमें भी women empowerment तो मैंने देखी है because I've been a graduate of हाँ, Ravian as well, कि लड़कियों की उसमें भी आपको security ऐसे है, ऐसी you know, you've got all those areas, dramatic society में आप जा सकते हैं, आप बहुत सारी, खैर talking about university life in लाहौर या पाकिस्तान में कराची, इस्लामाबाद, मुल्तान, कोई भी आप city उठा लें, I think ये तो है कि we guys have changed a mindset to an extent कि education पे हम रोक नहीं रहे, we are letting them, you know, go to the institutes. तो वहां पे मेल प्रोफेसर्स भी होते हैं, आपके मेल कोलीग्स भी होते हैं, तो जब वहां तक आप अलाउ कर देते हैं, तो सेकंड इशू जो मुझे जहां लग रहा है वो फैमिलीज में नहीं है, वो उन फैमिलीज में जहां लड़कियां जाती हैं कि जी वो जो इन लॉज हैं, जैसे कहते हैं कि वो कहते हैं कि नहीं जी अब आप तो आप घर की हो गई हैं, बस डॉक्टर, हमें एक टैग चाहिए था, यूरो डॉक्टर, किसी को बताना हमें बड़ा अच्छा लगता है. I mean, what sort of mindset is this कि आप सिर्फ ये बता रहे हैं कि जी हमारी बहू तो है वो डॉक्टर है, प्रैक्टिस नहीं भी करती, तो देखें जी एक स्टेटस सिंबल बनाया हुआ है हमने. तो कैन यू मेरे कम, साथ तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ, नहीं नहीं लेकिन हुआ, बट और जनरली आप हाँ सुनती होंगी ना हाँ, सोसाइटी में, देयर ऑब्वियसली. इज अ लॉट मैं भी ऑफ अब प्रेशर. देखें, आई हैवंट हैड सच एक्सपीरियंस, बट कमिंग फ्रॉम, बिकॉज आई बीन, देखें हर बंदे के हाँ, घर में माएँ भी होती ट्रू. हैं, बहनें भी होती हैं, आपकी दोस्तें भी होती हैं, मेरी वाइफ भी, यू नो देयर आर लॉट ऑफ पीपल, तो उनसे सुनने को मिलता है कि जी इस तरह की सिचुएशंस है. तो वी आर टॉकिंग अबाउट द और कोर मोस्ट अच्छा, तो इश्यूज. द थिंग इज कि मैं ये कह रही थी कि जीसी यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी में, रिस्पेक्टेड यूनिवर्सिटी में भी, क्योंकि इंसान ही है ना, वो पाकिस्तानी अवाम ही है हर जगह जहाँ पे भी आप जाओ, अगर आपको वहां पे डिफिकल्टी फेस हो सकती है कि इतनी सेफ यूनिवर्सिटी में काम करते हुए, पढ़ते हुए, तो आपको दुनिया में कहीं पे भी हो सकते हैं. तो ये तो आप फॉर्मूला से ना माइनस नहीं कर सकते कि लोग बुरे हैं, लोग इस किस्म के हैं, उनकी सोच इस तरह की है. तो आपको, अगर आपको लड़कियों को इनकरेज करना है ना, पेरेंट्स को इनकरेज करना है कि वो अपनी बेटियों को, अपनी बहुओं को निकलने दें, काम करने दें, तो यू हैव टू क्रिएट अ सेफ एनवायरनमेंट फॉर देम. यहाँ पे फिर मर्दों की तरबियत की बात आ जाती है कि एग्रीड. आपको अपने बेटों की तरबियत इस तरह करनी चाहिए कि किसी की बेटी उनके इर्द गिर्द काम करते हुए सेफ महसूस करे. कुरान में तो ये हुक्म है कि जी अगर आप फॉर एग्जांपल आप मर्दों के लिए स्पेशली कि आप अपनी नजरें नीचे रख के चलें, नजरें पॉइंट नीचे बीइंग करेंगे. इज के हाँ, डोंट बी के ये हम तो मर्द हैं, तो यू नो पॉइंट बीइंग इज के वी आर गोना डू व्हाटएवर वी वांट हाँ, टू. देयर इज हाँ, नथिंग लाइक दैट. औरत की एक रिस्पेक्ट है, और एक प्रॉपर इस रिस्पेक्ट इस्लाम में, शायद किसी भी रिलीजन में आप देख लें तो उसमें ये हाँ, बात होगी. बट कमिंग टूवर्ड्स द पॉइंट नाउ, वी डू अंडरस्टैंड कि इशू तो है, चलें प्रॉब्लम तो एग्जिस्ट कर रहा है, you elaborated it in a very good way, and now I think जो लोग हमें सुन रहे होंगे they would know कि what are we talking about. Now coming towards the point, now how should we eliminate and minimize this problem? क्या आपको लगता है माइंडसेट किस तरह से चेंज करना चाहिए, कैसे बेबी स्टेप्स हम लेंगे तो कैसे जाके ये कल्चर चेंज होगा और ट्रांसफॉर्म होगा टुवर्ड्स बिल्डिंग एंटरप्रेन्योर्स, जो कि हमारा मिशन भी होता है पॉडकास्ट का. आई थिंक होममेड बिजनेसेस की तरफ अगर पॉजिटिव बात करें तो विमेन का बड़ा रोल है, बहुत मेजर रोल वो प्ले कर रही हैं. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? Ali, the thing is that I was going to come to this point that if you are facing these hurdles or these barriers, I don't want you to stop. Please don't stop. मैंने ये चीज face की Phone Express में, I just left it. मैंने कहा नहीं, ये respectable नहीं है, and I don't feel myself, I don't want to push myself there, और मैं इतना नीचे गिर के, क्योंकि मेरी कोई मजबूरी नहीं है करने की, इस वजह से I don't want to do it. Although a girl, if she decides, she can still face the world and she can still cope with the situation in better ways. लेकिन मैंने अपने लिए क्या डिफाइन किया, मैंने तब से सोच लिया कि I'll be working from home. I'll run an online business and I will just use my services ताकि मुझे किसी दूसरे बंदे से बात भी ना करनी पड़े, किसी को मुंह भी ना लगाना पड़े अपनी जिंदगी में खैर ये तो दोबारा बहुत हायर करने एग्रेसिव के हो गए हैं आप, लेकिन पॉइंट इज के चलें ठीक है, गो अहेड. लिए. हाँ. So what I think is that internet has provided us infinite opportunities. When I say infinite, I mean infinite. And one can discover a million ways to earn from home and earn good money. Not ऐसे नहीं कि आपको मर्दों जितनी अच्छी सैलरी नहीं मिलेगी, आपको उनसे भी ज़्यादा अच्छी सैलरी मिलेगी.
because you'd be earning in dollars and they'll be doing their 9 to 5. You will be having flexible timings and they'll be like stuck with the routine and they won't have any time to spend on themselves, but you will be striving for it. I became a content writer in, I guess, 2019. I started my journey with that. और it was like मेरी पे थी 10,000 रुपए बस, वो भी मेरे बाबा ने मुझे अपने फ्रेंड को रेफर किया, एंड दे हैव अ मैगजीन फॉन वर्ल्ड के नाम से. इट इज़ अ वेरी गुड मैगजीन माशाल्लाह, और दे सपोर्टेड मी इन अ टाइम व्हेन आई वाज नथिंग. यानी आपने पैसों के बारे में नहीं सोचना बिल्कुल भी, वो आनी जानी चीज है, आपने एक्सपीरियंस गेन करना है. यू हैव टू गेट सम स्किल एट हैंड. मैं ये नहीं कह रही कि लड़कियों के लिए कमाना जरूरी है, उनके लिए कमाना जरूरी नहीं है, उनके लिए अर्निंग पॉइंट्स रखना जरूरी है कि अगर कल को खुदा न खास्ता आपके साथ कोई भी आप पे कालमिटी आती है, आपको कोई किसी किस्म की भी मुश्किल पेश आती है, तो यू कैन जस्ट यूज दैट थिंग. वो सिलाई कढ़ाई भी हो सकती है, ये कपड़े सीना भी हो सकती है, और ये सोशल मीडिया इवेंट मार्केटिंग मैनेजमेंट हो सकती है. आप घर बैठ के बॉक्सेस बना के बेच सकती हैं हाँ, लोगों को, वो जो बिग बॉक्सेस हैं. बर्थडे केक्स आप ये बना आप सकते हैं, हाँ. जो फॉन्डेंट केक्स आजकल आए हुए हैं, कुकी मॉन्स्टर्स एंड ऑल, ये सारा घर से लोग कर रहे हैं. आप डिजिटल साइड पे आ जाओ तो ये डिजिटल सर्विसेज बहुत ज्यादा है. कंटेंट राइटिंग है, ग्राफिक डिजाइनिंग है, एनिमेशन है, हर किस्म का. फाइबर आपकी मार्केट प्लेस है, अपवर्क आपकी मार्केट प्लेस है, और 100,000 किस्म की मार्केट यूट्यूब, प्लेस है. पूरी पूरी यूट्यूब. डिटेल्स दी हुई हैं लोगों ने कि यार कैसे अकाउंट बनाना है फाइवर पे. तो इंस्टेड ऑफ यानी आस्किंग फ्री आप पीपल जस्ट सीखोगे. सर्च ऑनलाइन, यू नो. या फ्री आप सीखोगे और फ्री आपका जीरो जीरो इन्वेस्टमेंट लगेगी. only the only investment you will be having is your time and your energy बस. और ये अंडरस्टैंडेबल. चीज आपके लिए, I just want to stress that why is it important to have an earning point, because हमारे माँ बाप ये सोचते हैं या हम ये सोचते हैं कि पहले अल्लाह ताला सारों के वालिदैन को लंबी जिंदगी दे और सलामत रखे, लेकिन वो होता है कि वो हमारे सर पे हैं, they are just doing fulfilling all the needs and everything. और हाँ, फिर एक उसके पॉइंट बाद तक तो हम चले उनका करना बनता है ना, चले हाँ, एक 18 और तक. घर ट्रांसफर हो जाते हैं हम, एक हस्बैंड मिल जाता है, ठीक है, वो भी अच्छा रहे, लेकिन आपकी जो मैरिज है वो बहुत तरीकों से एंड हो सकती है. चाहे वो किसी की डेथ हो, क्योंकि आजकल तो आपको पता Which is a very good point. अनसर्टिनिटी हाँ है. नहीं, I have been knowing certain families जिधर इस तरह हुआ हाँ, भी है. सेम है. मैंने भी ऐसी ऐसी लड़कियां देखी जो बिल्कुल ठीक थी, वो बहुत वेल्दी थी, सब कुछ बिल्कुल ठीक था. वन ऑफ देम जस्ट लेफ्ट हर बैचलर्स इन बिटवीन, क्योंकि उसने कहा कि अब शादी होने लगी है तो मैं बीए छोड़ देती हूँ, अब मैंने क्या करना बैचलर्स करके. वो उसने छोड़ दिया, वो उसके हस्बैंड की समवट इट एंडेड, और फिर शी जस्ट स्टार्टेड हर बी ऑनर्स वंस अगेन. तो एंड पे जब आपने हाथ में कुछ नहीं रहता ना, तब इंसान को और समझ सबसे आती है ज्यादा कि इफेक्ट कौन होता है? आपके बच्चे. वो अगर वो आपके बच्चे लड़की और हैं, आपके बच्चे बस. हाँ. instead of thinking about another marriage, it's always better. मतलब मैं ये नहीं कहता, अगर आप करना चाहते हैं तो Islam has given you all the करें, right, you जरूर can go करें. ahead. हाँ. But and one thing that I always I've been mentioning this to people out there who are close to me, especially females that I know. I've always asked them and motivated them to go ahead and be something. You know why? Because even in future, if you're going somewhere, आपकी रिस्पेक्ट जो होती है ना, वो आपकी एक स्किल सेट है. आपके इन लॉज में भी, आप कहीं पे भी जाते हैं, अगर आप डॉक्टर हैं तो बिल्कुल प्रैक्टिस किए बगैर मत जाएं. एटलीस्ट दे शुड नो कि यार एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इफ वी ट्राई टू डू एनीथिंग रॉन्ग, जो कि आजकल सोसाइटी में हो भी रहा है बहुत सारे हस्बैंड्स की तरफ से, लड़कियों की तरफ से भी. तो यू कैन ऑलवेज शो दैट कार्ड टू देम कि डोंट think that I don't have that way out to actually go. If अगर आपको socially कोई discrimination हो रही है आपके साथ, या कोई ऐसा, वो क्या वर्ड होता है एग्जैक्टली जो यूज होता है, काफी डोमेस्टिक वायलेंस के अगर आप फेस कर रही हैं, तो यू ऑलवेज हैव, अगर आपके पास स्किल सेट और नॉलेज नहीं होगा तो फिर तो देखें आजकल व्हाट्स गोइंग ऑन दीज डेज, सो यू वुड नॉट बी एबल टू कोप अप. और इस तरह मैंने देखा है, आइजा, लिटरली आई हैव सीन ऑल दोस मदर्स के जी, वो हस्बैंड शादियां कर लेते हैं, उसके बाद वो कहती हैं कि क्या करें जी, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा. तो ये जो वर्ड कॉम्प्रोमाइज है ना, वो एक थ्योरी थी सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, अब वो हो गया शुरू. आई थिंक दिस इज हाई टाइम वेयर पेट्रोल प्राइसेस, हर चीज इज डबल. यू गो आउटसाइड, आपको हर चीज डबल मिलेगी. आई थिंक यू फेल्ट इट एज वेल, इट्स नॉट जस्ट मी. तो
इस हाई टाइम में वेयर एवरीथिंग आपको, आप डॉलर्स पे आ रहे हैं, आप अपनी शिफ्ट चेंज कर रहे हैं, आप अगेंस्ट द नेचर जा रहे हैं, इतना कैओस मचा हुआ है। तो वन थिंग इज, स्टार्ट योर ओन वेंचर्स एंड डोंट हेजिटेट। अब लोग हेजिटेंट कहाँ पे होते हैं कि यार हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है, हम कैसे करेंगे। देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस इन देयर माइंड्स। सो व्हाट डू यू थिंक? अच्छा चलें, एक तो वो हो गई ना, चलें आप जैसी फीमेल्स हो गई और कुछ लोग हो गए जिनके पास अपॉर्चुनिटीज हैं, जिनके पेरेंट्स हैं सपोर्टिव। व्हाट इज द मैसेज टू दोस पीपल जिनके पास ये सब लोग नहीं है बट वो करना चाहती हैं, दे आल्सो वांट टू गो आउट? हाउ कैन दे फाइंड देयर वेज आउट? Well, I don't have any answer to that because it is totally on them. What I can suggest is that you Yeah. need not to go out. You need Hmm. not to go out. If you have to create something for yourself, you have all the means provided at your home for that. तो Hmm. आप कर सकते हो स्टिल यू कैन, यानी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है ना थोड़ा सा, अपने पेरेंट्स के साथ भी, सोसाइटी के साथ भी। यानी ये नहीं बिल्कुल कि हाथ छोड़ के बैठ जाओ कि जी हमारे तो Try to हालात इस convince वक्त them. ऐसे Try हैं। to come up with हाँ, logical aspect हाँ, and explain. आराम आराम से ट्राई इट। कतरा गिरता है, एक वो जो कहते हैं ना, कतरा कतरा दरिया बनता है, पत्थर पे भी गिरे तो सुराख कर देता है। तो इस तरह ही है कि आप आहिस्ता 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 करते रहो तो इंशाल्लाह। और तब तक बैठने की जरूरत नहीं है फारिग। यू हैव यूट्यूब, यू हैव योर मोबाइल, इंटरनेट और मोबाइल तो हर वक्त हर किसी के पास है। अगर आप सबके टिकटॉक पास है। बना सकते हो उसके ऊपर, तो आप वो अगर सोशल आप मीडिया मीनारे मार्केटिंग। पाकिस्तान जाके और वो इस तरह के इंसिडेंट्स हाँ, कर सकते हैं तो बेहतर कुछ प्रोडक्टिव हाँ, करें, ना ही आपकी प्रोडक्टिव भी वो कर इस तरह सकते से अजीब डी मार्केटिंग होगी, ना ही हैं। आई थिंक इट्स गोना बी अच्छा रियली अली, गुड। एक और चीज जो आपने मुझे अभी भी एक बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ मेरा ध्यान किया कि यू कैन प्ले द कार्ड कि आई कैन अर्न इट और मैं छोड़ सकती हूँ, ये वाला, इस वाले पे भी मैं जाना चाहूंगी हम्म। कि हम, हमारी जो इस्लामिक सोसाइटी है वो फैमिली लाइफ को प्रमोट करती है, हर तरह की फैमिली लाइफ। मैं यानी अगर आप कंबाइंड फैमिली में रह रहे हो या फिर आप अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हो, अपनी वाइफ साथ रह रही है, तो यानी एक तलाक, आपको पता है ना, एक ऐसा हलाल काम है जो हलाल कामों में सबसे ज्यादा नापसंदीदा है अल्लाह ताला के नजदीक। हम्म। तो I just want to tell the women who are empowered and who have achieved something in their lives और उन्होंने अपना एक करियर बना लिया है, उनको I want to say that don't be stubborn on it. Your first priority should be your home and your first priority should be homemaking. यानी ऑब्वियसली। ये नहीं करना आपने कि बेजा ज्यादतियां हाँ बर्दाश्त गिरी, करते रहो, आप तो ये चौड़े ही हो मुश्किल गए है। हैं कि जहाँ बस मैं तो हाँ, डॉक्टर हूँ, तुम हो क्या? मतलब जब मैं अभी हाँ, निकल जाऊंगी, 6 लड़के मिल इन जाएंगे। दो हाँ। एक्सट्रीम्स हैं हाँ। और इन दो एक्सट्रीम्स पे नहीं जाना आपने। ना ही आपने जुल्म और बर्बरियत बर्दाश्त करना है, ना आपने खुद हर बात, छोटी से छोटी बात पे कहना है कि चलो ठीक है फारिग हो, मैं तुमसे ज्यादा कमा सकती हूँ, अगर मैं निकलूँ चलो निकलो, कोई नहीं मुझे कोई। हम लोग को डिपेंडेंट सोसाइटी बनाते हैं, हम लोग वो वेस्ट की तरह मादर पिदर आजाद लोग नहीं है, बल्कि वी आर डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर एंड वी कैन मेक अ बेटर सोसाइटी आउट ऑफ इट। अगर हर कोई इंडिपेंडेंट होने लग जाए और हम को डिपेंडेंस का की आइडियोलॉजी को ना फरोग दें, तो अल्लाह वी विल ताला बी ने एक सिस्टम ही लेफ्ट। ऐसे बनाया है कि वी नीड ईच हाँ, अदर। मतलब फॉर हाँ, एग्जांपल, इफ वी आर डूइंग पॉडकास्ट तो आप नहीं होंगी तो फिर मैं अकेला तो नहीं बोल सकता ना, हम्म, ऑब्वियसली वी नीड टू पीपल टुगेदर टू एक्चुअली गो अहेड एंड स्पीक ऑन सर्टेन और टॉपिक। उसके लिए बर्दाश्त करना होता है। आपके अंदर कुछ बुराइयां होंगी, कुछ बुराइयां मेरे अंदर होंगी, कोई भी इंसान कंप्लीट नहीं है। हमने एक दूसरे को सपोर्ट करना है, एक दूसरे की बुराइयों पे पर्दा डालते हुए इकट्ठे चलना है। तो इस वजह से डेफिनेटली। दिस इज, आई रिपीट कि एहसास जो है, दैट इज द बिगेस्ट वर्च्यू यू कैन हैव इन योर बट पर्सनालिटी ऐसा, ये एंड बातें तो हम लोग सब करते हैं, मॉर्निंग टॉक शोज में भी होती हैं, जब भी कोई 3 लोग बैठते हैं, बड़े भी हमें सिखाते हैं। अब मैंने आपसे क्वेश्चन किया था जिसका शायद एग्जैक्ट आंसर अभी तक नहीं आया, वो ये था कि विमेन कार्ड जो लोग प्ले करते हैं, वो तो शायद आपने अब दे ही दिया उसका आंसर। बट एक तरफ हम कहते हैं कि विमेन दे डोंट हैव राइट्स, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग आई हैव सीन कि अब सर्टेन कोटाज हैं। एक तो आपने बात की वर्क फ्रॉम होम और इन अपॉर्चुनिटीज की, बट ये भी, इसमें भी कोई बुराई नहीं है कि इफ यू गो आउट एंड यू गो फॉर अ साइड हसल एंड यू फाइंड अ गुड वर्क प्लेस, व्हाट वुड बी योर मैसेज टू दोस पीपल? देखें, आजकल का जो कल्चर है, आई एम नॉट गोना नेम एनीवन, या हर सोसाइटी में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। तो certain women, if they're going and if somebody is trying to use the male card now to the women के जी, just for the sake of the fact कि यार आपकी मजबूरी है
और इस तरह की बातों पे एट टाइम्स हम लोग मान भी जाते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि चलें ठीक है यार मजबूरियां हैं। तो व्हाट वुड बी दिस मजबूरी थिंग, मतलब हाउ टू एलिमिनेट दिस फ्रॉम अ लाइफ ऑफ अ गर्ल और अ गाय एज वेल, कि डोंट you have a certain value, let people know that if they want to hire you, they should hire you basis on the fact that you're capable enough. हमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शॉर्टकट्स ढूंढ के शायद ये सोच लेते हैं कि यार चलो इन इन आई विल बी वेरी ऑनेस्ट एंड फ्रैंक, यार चलो हम दोस्तियां बना लेते हैं तो शायद हम प्रमोट हो जाएं, डिस्क्रिमिनेशन का एक कल्चर एक क्रिएट हो जाता है। बिकॉज मैंने तो कॉर्पोरेट सेक्टर्स में काम किया, तो मैं ये नहीं कह रहा कि हर जगह ऐसे हो रहा है, बट हो भी रहा है। तो व्हाट वुड बी द मैसेज टू दोज फीमेल्स एंड दोज गर्ल्स आउट देयर कि यार डोंट सेटल फॉर दीज माइनर थिंग्स, थिंक अबाउट ब्रॉडर पर्सपेक्टिव्स, उनके बारे में क्या मैसेज आप देना चाहेंगी? उनका इस तरह ही है कि अली, द थिंग इज दैट ऑल ऑफ अस आर डूइंग समथिंग फॉर आवरसेल्व्स। हम Yeah. लोग अपनी अपनी मेहनत में अपनी अपनी तगोदों में लगे हुए हैं। इफ जी। यू फील लाइक यू आर नॉट रिस्पेक्टेड एट अ प्लेस और यू आर नॉट गिविंग द राइट वर्दीनेस दैट यू डिजर्व एट अ प्लेस, तो पहले तो बी ओपन अबाउट इट। Be से open. कि यार ये दिस इज माय रिज्यूमे, these are my expertise and this is what I'm worth. Or if you don't give me that, be assertive about it. Be assertive about Assertive what is a very good word. Just आपकी टोन में वो रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि अगले को पता चल mm, जाए कि यार शी इज हेयर टू एक्चुअली वर्क, दैट्स इट। work. हम 9 to 5 करेंगी, तो हम ओवर टाइम भी करेंगे, इसमें कोई इशू नहीं है, बट डोंट थिंक अबाउट वो एनी XYZ थिंग। और ये जब वो एक उनको लड़की लगता है। कल्चर क्रिएट करती है, सॉरी टू कट यू है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उस एक बंदी की वजह से पूरा वो जो कहते हैं ना, एक वो जो फिश है वो पूरे पॉन्ड को जो है वो खराब करने वाली बात है। तो गो हेड। से अली प्लीज, डू यू हैव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट दैट कि हमारी कोई हेल्पलाइंस हो इस तरह की जहां आप हरासमेंट को रिपोर्ट कर देखें, सको, आई विल वुमेन बी वेरी हरासमेंट ऑनेस्ट, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, एज फार एज हेल्प, एक तो 1112 आपको पता है, अगर इफ यू आर इन लाहौर, आपको रेस्क्यू वाले डॉल्फिन स्क्वाड एंड ऑल दैट वो सब कुछ हैं, तो आई वुड रिकमेंड देम टू कॉल देम राइट अवे। बिकॉज आई हैड एन इंसिडेंट, इट्स नॉट जस्ट अबाउट गर्ल्स, आपको कभी कोई इशू बीइंग अ मैन भी फेस आप कर सकते हो, नॉट जस्ट अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग, किसी भी किस्म का इशू हो सकता है। तो यू शुड ऑलवेज जस्ट गिव देम अ कॉल एंड रिपोर्ट इमीडिएटली कि यार मैं इधर हूँ और मुझे लगता है कि देयर इज समथिंग, somebody might harm me or anything like that. So I think not just in Lahore, ab to khair aista aista, but this is a very good message that we would want to give to the government and people who are actually in those sectors and who can play a good part in this thing to actually feel women more empowered. कि just click a button and we are there for you, we're going to protect you. I think इससे बहुत सारे मसले भी हल हो जाएंगे और आई थिंक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। लेकिन एज अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आपको एक चीज छोटी सी बताऊं, जो वही बात होती है करियर काउंसलिंग और सब्जेक्ट्स की। आई थिंक हमें अब एज अ सोसाइटी इतना ओपन हो जाना चाहिए कि स्कूल्स में वी टेल गर्ल्स clearly about the facts कि if they are facing a certain situation, या इवन बॉयज इफ देयर, अगर देखें हमें भी तो कोई गन पॉइंट पे आके कह सकता है ना कि वॉलेट निकालें या ये चीजें करें, तो अगर मैं ऐसी सिचुएशन में हूं तो हाउ टू रिएक्ट। हम में से बहुत सारे लोगों को रिएक्ट नहीं करना आता, हम लोग नर्वस मेथोडोलॉजी नहीं जानते। हमें कोई आके ऊंची आवाज में बोलेगा तो फॉर वाइल वी बी लाइक यार क्या हो गया, तो वी शुड नो दीज थिंग्स। वो ब्लैक पेपर स्प्रे बैग में रखना, एक पूरी किट होती है, एक आपको वो विमेन को अलाउ करनी चाहिए स्पेसिफिकली, वो जो स्विस नाइफ और वो इस तरह की चीजें जो होती हैं। और उसके ऊपर आपको आई थिंक बेस्ट एज वो होती है जिसमें आप बच्चे छोटे छोटे होते हैं स्कूल्स में। I remember my father, he used to, I have an elder sister, she's 1 year older than me. So my father used to teach us कि जी आपने क्या, how to kick someone, या if you are facing such issues तो आपने किस तरह आप defensive होना है। तो do you think this can actually create some impact? ऑफ कोर्स इट कैन, लेकिन मैं इससे एक स्टेप पीछे जाती हूँ रिएक्शन और बॉडी लैंग्वेज और आपकी ओवरऑल लैंग्वेज पे बात करने के लिए कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज एंड हाउ इट अफेक्ट्स द अदर पर्सन कि वो आपसे किस किस्म का कम्युनिकेट करे। फॉर एग्जाम्पल आई वॉज एट NCA फॉर शॉर्ट कोर्स, आपको पता है मुझे छोटी छोटी बहुत सारी चीजें करने का बहुत शौक है। तो मैं सिरामिक डिजाइन के एक कोर्स करी थी NCA से।
एंड आई हैड दिस वाटर बॉटल इन हैंड और मैं उसको खोलने की कोशिश करी थी, अक्सर नहीं खुलती, ठीक है, लड़कियों हो को जाता समझा है, जाता है कि वो नहीं, तो नाजुक हैं जी, दे वांट नहीं, सम, हाँ, हाँ जी, नाजुक है तो दे which is वांट I don't समवन believe in that. खैर स्ट्रांग, ठीक है, go ahead. they want someone strong to open it. तो वो एक बड़ा ही शोखा सा लड़का था, he was हाँ sitting हाँ, right across me और उसने कहा लाओ मैं खोल देता हूँ, हम्म, and I just looked at him right in his eyes and I opened it like this because आपको कि वो I एक I don't एड्रेनलिन हुआ कि भाई know क्या हाँ समझते हो, नहीं खुल हाँ सकता। बेटे क्या कौन हो तुम, हाँ चलो भागो यहाँ, तो इस तरह करके तो आपकी बॉडी लैंग्वेज और आप किस किस्म का अपना इमेज देते हो पूरा एक वर्क प्लेस पे, मैं ये नहीं कह रही कि जो रेप विक्टिम्स हैं या हरासमेंट हम्म विक्टिम्स हैं उनकी जरूर अंदर कोई बात होती है जिस तरह, लेकिन हम्म आई एम जस्ट टेलिंग यू कि आपकी ड्रेसिंग और हम्म, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके एक्शंस बहुत ज्यादा इस आपकी चीज पे टोन इफेक्ट, हाँ स्पेसिफिकली, टोन देखिए कि ड्रेसिंग किसी वाइज को तो अब इट्स एन ओपन एटमोसफेयर, पीपल लाइक टू हम्म, वेयर जीन्स एंड शर्ट्स, as long as हम्म, वो डेकोरम में लोग कर रहे हैं, that's fine, even for men out there, शॉर्ट्स वगैरह हम्म, लोग पहनते हैं, घूमते हैं, but हाँ डेकोरम के अंदर आप अपना, आपको यू शुड नो दीज थिंग्स फ्रॉम योर हाउस, नोबडी इज गोना गाइड यू कि बच्ची बच्चे किस तरह बाहर हम्म, आपने निकलना है, पीपल लर्न हाँ, इट फ्रॉम देयर हाउसेस, डिपेंडिंग कि हम्म, आप इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में रह रहे हैं तो आपने किस तरह हम्म, से करना है। खैर अब आजकल तो ब्लॉगिंग ने इतना चेंज कर दिया कल्चर के, पीपल आर हम्म, गोइंग टूवर्ड्स दोज थिंग्स, तो हम हाँ, उसको तो कंट्रोल नहीं कर सकते ना, बट व्हाट नहीं कर वी सकते। कैन डू इज, इफ यूर अ गाय या अगर आप मेल हैं, तो व्हाट यू कैन डू इज कि यू कैन ट्राई टू एटलीस्ट थिंक कि भाई आई इस्लामिकली के यार बस ठीक है, मेरे घर में भी मेरी माँ है, बहन है, उनके साथ भी अगर मैं ये हम्म, करूंगा तो उनके साथ भी कल को कोई कर सकता है, तो हम्म, फिर आई हैव नो राइट टू प्रोटेक्ट माई सिस्टर कि इफ आई हम्म, एम डूइंग द सेम थिंग टू अनदर सिस्टर, हम्म, which is a fact. ठीक है, तो और जी गो अहेड। लड़कियों के लिए ये है कि उनको उनकी टोन इतनी सख्त और इतनी प्रोफेशनल होनी चाहिए कि प्रोफेशनल, अगले बंदे को कोई फजूल बात करने का मौका ना मिले। हाँ अगर आप मजाक आप भी यूपी करें, और के अगर देख प्यार रहे से हाँ बात हाँ करनी है तो प्यार से भी हाँ करें, ये डिपेंड करता है कि किसी हाँ को, अब आप हैप्पी बर्थडे कह रही हैं फॉर एग्जांपल, हाँ मेरी बर्थडे आपके हैप्पी बर्थडे अली, मैं कहूंगा पता नहीं क्या हो गया यार, आप नहीं आराम नहीं से, अली, हाँ आई थिंक सो यू गेट माय पॉइंट कि आई एम आप गेटिंग यू, मतलब मैं प्रोफेशनलिज्म में आई एम कैसे ट्राइंग टू हाँ एलैबोरेट कि हाँ प्रोफेशनल बीइंग इज कि इफ यू देखें, एक प्रोफेशनल एटमोसफेयर में यू हैव टू बी हम्म, प्रोफेशनल, जो आपके हम्म, मैनेजर्स हैं दे आर योर फ्रेंड्स एज वेल, बट फ्रेंड्स का मतलब ये नहीं है कि यू गोइंग आउट ऑन अ डेट और स्टफ लाइक दैट, जस्ट कीप इट प्रोफेशनल विद देम हम्म, ऑन द वेरी फर्स्ट डे। लेकिन वही मसला आ जाता है ना कि पहले हम खुद रूम देते हैं कि यार ठीक हम्म, है, वी ट्राई टू अट्रैक्ट देम टुवर्ड्स अस, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, अपनी बात तो नहीं कर रहा मैं, बिकॉज़ आई हैव बीन इन डिफरेंट सेक्टर्स हाँ, जहाँ आई नो, पे लड़कियों के साथ तो मैंने बहुत ज्यादा काम किया है, तो आई हैव हम्म, ऑब्जर्व कि वो इस तरह से एक अटेंशन सीकिंग अप्रोच हम्म, जो है, विच इज रॉन्ग। अगेन फिर उनकी हम्म, वजह से जो इनोसेंट लोग होते हैं वो समझते हैं कि यार अगर हम इस कल्चर में फिट इन नहीं होंगी तो फिर हमें हम्म, भी वो अटेंशन नहीं देंगे, और वो मैनेजर्स जो हैं वो एक कल्चर एक क्रिएट चलता हाँ, जाता है, तो वी शुड स्टॉप इट। आप अपने दोस्त बनाए यार, आपकी पर्सनल लाइफ है, आई एम नो वन टू जज यू, मैं भी कोई स्कॉलर नहीं हूँ, कोई रिलीजियस स्कॉलर नहीं हूँ, इफ यू लाइक इट डू दैट, बट डोंट लेट अदर पीपल नो, उनकी लाइफ अफेक्ट नहीं होनी चाहिए इस चीज से, हम्म, किसी की गलत प्रमोशन होना वो डिस्क्रिमिनेशन है, उसके ऊपर हम्म, स्पीक इट आउट। कोई बंदा आपको पहले दिन देखें, पहला जो एक इंप्रेशन होता है ना जो कोई किसी को देता है सोसाइटी में, दैट्स ईदर यू गो अहेड और ईदर यू स्टॉप इट देयर। अगर आपने वो फर्स्ट इंप्रेशन पे नहीं आंसर बैक किया और अगर आपने यही सोचा कि यार चलो खुद ही ठीक हो जाएगा, नहीं, इस तरह नहीं होगा। हम्म, ऑल्सो फॉर शट अप कॉल गाइज, लेना बहुत ऑल्सो फॉर जरूरी होता गाइज, अगर कोई आपके है। पास, इफ पीपल आर कमिंग, या कोई आपकी मैनेजर्स हैं, क्योंकि आप तो फीमेल मैनेजर्स भी बहुत सारी हैं, इफ दे ट्राइंग टू थ्रो अ लूज बॉल टुवर्ड्स यू, जस्ट डोंट ट्राई टू हिट अ सिक्स एवरी टाइम। आप कहें कि नहीं जी ठीक है मैंने स्टॉप करना है, और किस तरह मैंने उनको एक प्रोफेशनल, और लोग कर भी रहे हैं, आई बी वेरी ऑनेस्ट, देयर आर गुड पीपल एज वेल, they're trying to eliminate it. Aiza, finally, we are done with it. I think we don't have much more time to actually, I would love to go ahead and talk about this topic in another session that will come soon regarding the changing trends in Pakistan. Guys, you guys can subscribe us on Youth Alumni Association. Thank you so much, Aiza, for your time. And this was a very good topic to actually bring, ahead of youth. Thank you so much for that. Thanks a lot, Ali, for having me. Thank you. Allah Thank you. Hafiz. Take care. Ji. Allah Hafiz.